Good morning friends, this is Chandan Singh. Today we are learning about the new topic that is chromosomal theory of inheritance. So in this theory we will discuss about how to sex cells are maintain their gender and sex determination. So that is very important how to maintain their sex and which one process are responsible to that particular process. So that is the very important content with respect of the sex determination. So what is the exactly role play of the sex cells? So basically friends, basically there are two different type of cells. First one is male gametes and second one is the female gametes. Male gamete and female gametes both are interact with each other during the sexual intercourse and it will form the zygote. Zygote basically diploid natures. So I just know about that means zygote is a diploid natures. Diploid cells, that means 2n, and it will form with the fusion of male gametes and female gametes. This process is called fertilizations. So in this process, the male gametes and female gametes are interact with each other and form the zygote. So that is very important. That is diploid cells, and these all are haploid cells. These all are haploid cells. That means two haploid cells interact with each other and form that diploid cell that is called zygote. Now, in this zygote, what is the accumulations of that character? So in this zygote, basically one set of maternal chromosomes which are coming from the ovums and one set of the paternal chromosomes which are coming from the sperms are interact and consider the information of the genetic codes. So these all are the accumulate in this informations. Basically one set of maternal chromosomes information which are coming from ovum and one set of paternal chromosomes informations which are coming from the sperms. So both the information are coming from different modes and which are responsible to form the zygote, that is diploid nature. So I will be discuss in their concept. That means zygote is responsible to form the embryo. So basically the development of the zygote is called embryo. This zygote is formed by the fusion and fertilization of the two different type of gamete, that is called male gamete and female gamete. Male gamete is haploid nature, female gamete is also haploid nature. Both are interact with each other and form the diploid cell, that is 2n. And in this informations, one set of maternal chromosomes information is received and one set of paternal chromosomes information are received from the sperms, from the ovums. Both the informations are interact in this zygotes. Now in this zygote, basically sperms, that is called basically two different information from the different chromosomes. Some chromosomes are coming from the maternal information and some chromosomes are coming from the paternal information. So both the informations basically interact with each other. Now chromosomes basically have some special unique information, some unique special characteristics which are maintain their individuality throughout their life. So basically I am talking about the chromosomes. So basically chromosomes have some
unique informations which maintain their individuality throughout their life. So all the chromosomes which whether is male gametes or female gametes, it will be maintain their information to throughout their life, and there is no information change in their any future times. So the information that is unique characteristics to maintain their throughout life. Now basically a chromosomes, every chromosome, you can say like this, every chromosomes having number of genes, every chromosomes having number of genes. The gene are present on the chromosomes, you learned in previous classes. All the genes are present on the chromosomes. These genes having some genetic information, you can say like this, gene have collect all the genetic information, so that are responsible to transfer the genetic information from the parent to the offspring. So these all the genes are present on the chromosomes which having some unique characteristics, so that is responsible for the genetic information. So now what is the mean of this concept basically? तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर थोड़ा सा हिंदी में बता देता हूँ आपको। जाइगोट जो होता है वो डिप्लॉइड सेल्स होती है जो कि मेल और फीमेल गैमेट्स के फर्टिलाइजेशन से तैयार होती है, जो डिप्लॉइड नेचर का होता है, दैट इज 2n। ये 2n कैसे बनता है? मेल गैमेट्स ये हैप्लॉइड नेचर का होता है, फीमेल गैमेट है ये भी हैप्लॉइड नेचर का होता है। इस हैप्लॉइड नेचर्स के इंटरेक्शन से बनता है डिप्लॉइड सेल्स। जब ये फ्यूजन तैयार होता है तो इस जाइगोट के अंदर एक इंफॉर्मेशन का पूरा सेट होता है। ये इंफॉर्मेशन का सेट दो अलग अलग इंफॉर्मेशन से कलेक्ट किया जाता है। पहली इंफॉर्मेशन वन सेट ऑफ मैटरनल क्रोमोसोम इंफॉर्मेशन होती है जिसमें मदर की इंफॉर्मेशन जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व होती है, एंड दूसरी इंफॉर्मेशन वन सेट ऑफ पैटर्नल क्रोमोसोम इंफॉर्मेशन यानी कि फादर से मिलने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स इन्वॉल्व होते हैं। दोनों ही इंफॉर्मेशन आपस में गैदर्ड होके क्या करते हैं, ये बनाते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो दोनों ही क्रोमोसोम्स जो मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम से इंटरेक्ट हो रहे हैं वो मिलके क्या करते हैं, बोथ दी क्रोमोसोम्स आर interact with each other and form the homologous chromosomes। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर homologous chromosomes का फॉर्मेशन होता है, homologous क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो क्या करते हैं, बेसिकली इस क्रोमोसोम्स की खास बात क्या है, इस क्रोमोसोम्स के अंदर अपने आप स्पेशल टाइप की कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन होती है जिसे जो यूनिक नेचर को डिफरेंशिएट करती हैं। यानी कि हर एक क्रोमोसोम्स का एक अपना यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जिसकी वजह से वो अपनी एक इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को पूरी लाइफ तक मेंटेन करके रखता है और उसकी इंफॉर्मेशन पूरे टाइम में कभी भी बदलाव नहीं आता, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता। वो इंफॉर्मेशन एक कोड के फॉर्म में रहती है जिसे हम बोलते हैं जेनेटिक कोड, और वो जेनेटिक कोड एक बार सेट हो जाता है, पेरेंट्स के थ्रू हमें मिल जाता है, तो वो इंफॉर्मेशन को सिर्फ आने वाली जनरेशन में ही पास करेगा और सेम इट इज, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करते हैं और अपनी इंडिविजुअलिटी को मतलब पूरे लाइफ तक मेंटेन करके रखते हैं। उन क्रोमोसोम्स के ऊपर पाए जाते हैं नंबर ऑफ जीन्स, बहुत सारे जीन्स पाए जाते हैं जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ कुछ खास बातें बताई जाती हैं। जब भी हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना होगा, आपको स्टार्ट करना होगा कि ड्यूरिंग क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में आप बताएंगे कि जो जाइगोट होता है वो आपके मेल और फीमेल गैमेट के इंटरेक्शन से तैयार होता है, जिसमें कि दो डिफरेंट टाइप के गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट, दोनों ही हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। और क्या करते हैं ये फर्टिलाइजेशंस और क्या बनाते हैं, डिप्लॉइड सेल्स, इसे हम क्या कहते हैं, जाइगोट। इसके अंदर क्या पाई जाती है, इंफॉर्मेशन। कौन सी इंफॉर्मेशन, वन सेट ऑफ मैटरनल इंफॉर्मेशन, वन सेट ऑफ पैटर्नल इंफॉर्मेशन। दोनों ही इंफॉर्मेशन किसमें इन्वॉल्व होती है, क्रोमोसोम्स के अंदर। ये क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, पेयरिंग, और क्या बनाते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो ये क्रोमोसोम्स करते हैं पेयरिंग करते हैं, और पेयरिंग करके क्या करते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स बनाते हैं। ये क्रोमोसोम्स बेसिकली क्या करता है, इस क्रोमोसोम्स का अपना एक यूनिक इंफॉर्मेशन होता है, एक अपनी खुद की इंडिविजुअलिटी होती है जो होल लाइफ इन्वॉल्व रहती है। तो ये
होल लाइफ जो है वो मेंटेन करके रखता है। अब इस क्रोमोसोम्स पे क्या पाया जाता है, किसकी वजह से ऐसा कर पाता है, क्योंकि इसके ऊपर पाए जाते हैं जीन्स। तो नंबर ऑफ जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स एंड दीज आर रिस्पॉन्सिबल व्हाट, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। लेकिन जब भी मियोसिस होता है, दैट इज द समराइजेशन ऑफ दैट पॉइंट। अब यहां पर मैं बात को समराइज कर रहा हूं, इस पूरे कंसेप्ट को एक समराइजेशन के तौर पे मैं बता रहा हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो यहां मैं इस बात को हटाने वाला हूं। जब भी क्या होगा, मियोसिस होगा, मियोसिस, तो इस मियोसिस में क्या होता है, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन, इसको हम रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं। इस रिडक्शन डिवीजन का मतलब ही है कि इसमें जो क्रोमोसोम्स नंबर होंगे, क्रोमोसोम्स नंबर वो कैसे हो जाते हैं, वो हाफ हो जाते हैं, वो हाफ हो जाते हैं, ठीक है ना फ्रेंड। तो यहां पर क्रोमोसोम्स नंबर हाफ हो जाते हैं, कैसे, जस्ट फॉर एग्जांपल। तो मैं यहां एग्जांपल बता रहा हूं। इस क्रोमोसोम से पहले मैं यहां बात बताऊंगा कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे वो म्यूसिस के दौरान क्या होने लगते हैं, वो सेपरेट होने लगते हैं, गेट सेपरेट विद ईच अदर, ठीक है ना, और एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। क्यों अलग हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर जो, यहां पर मैं एक चीज बताने वाला हूं, पहले आप इस चीज को समझ लीजिए। एक एग्जांपल, हमारे जो शरीर का जो बॉडी है, हमारे शरीर का जो बॉडी है, ये बॉडी को तैयार करने के लिए जो सेल क्या करती है, डिवीजन करती है, जिसे बोलते हैं सेल डिवीजन। तो ये सेल डिवीजन करती हैं। अब ये सेल डिवीजन जब होता है तो इस सेल डिवीजन में जो सेल के नंबर होते हैं, यानी जो क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं, क्रोमोसोम नंबर, ये क्या करता है, ये क्रोमोसोम्स जो नंबर है वो इक्वेशनल डिवीजन, यानी सेल डिवीजन कौन सा हो रहा है, इक्वेशनल डिवीजन, इसको फॉलो करेगा। इस इक्वेशनल डिवीजन को हम बोलते हैं माइटोसिस। तो ये माइटोसिस होती है हमारे बॉडी की जो सेल्स हैं, इन सेल्स में क्या होता है, माइटोसिस होती है। अब माइटोसिस होके क्या होता है कि 2n नंबर जो है, जब भी कोई सेल है इसमें जितने भी क्रोमोसोम्स नंबर है सेम एज इट इज पास हो जाते हैं, यानी कि कोई भी नंबर्स में वेरिएशंस नहीं आता है। तो ऐसी कंडीशन से क्या होता है कि हमारा जो सेल है लगातार इक्वल इक्वल सेल्स बनाता रहता है और हमारी बॉडी तैयार हो जाती है। लेकिन अभी ये बॉडी जो तैयार हुई है, ये मेल की तैयार हुई है या फिर फीमेल की तैयार हुई है, अभी ये डिसाइडेड नहीं हुआ। तो इसके लिए हमारी सेल्स माइटोसिस के बाद क्या करती है, मियोसिस करती है, मियोसिस, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन डिवीजन। इसमें क्रोमोसोम्स नंबर जो हैं वो हाफ हो जाते हैं। यहाँ पर जो 2n थे, अब जो अगली सेल बनेगी उसमें 2n नहीं जाएंगे, n जाएंगे, तो ये सेपरेट हो जाएंगे एक दूसरे से। तो होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो गेट सेपरेटेड हो जाते हैं एक दूसरे से, और हर बार जो क्रोमोसोम्स हैं वो आपका क्या करते हैं, वो एक दूसरे से क्रोमोसोम्स नंबर को हाफ करते जाते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि इसमें एक में आपका मैटरनल इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व होती है और दूसरे में आपका पैटर्नल इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व होती है। तो मैटरनल और पैटर्नल इंफॉर्मेशन आपस में इन्वॉल्व होके आपके सेक्स को डिटरमाइन करने में हेल्प करती हैं। तो इस तरीके से रिडक्शन डिवीजन कंप्लीट होता है। तो रिडक्शन डिवीजन के लिए जो कि आपके गोनाड्स को तैयार करते हैं, यानी कि सेक्स ग्लैंड को तैयार करते हैं, उनको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को तैयार करते हैं, उसके लिए आपके शरीर में मियोसिस रिस्पॉन्सिबल होती है। जिन लोगों का मियोसिस परफेक्ट होता है तो वो कंप्लीट तरीके से या तो मेल बनते हैं या फिर फीमेल बनते हैं, लेकिन जिनका मियोसिस गड़बड़ हो जाता है तो ऐसे लोग स्ट्राइल नेचर के होते हैं, यानी कि किन्नर जिसे हम बोलते हैं, या तो वो मेल किन्नर बनते हैं या फिर फीमेल किन्नर बनते हैं। तो उसके कई सारे सिम्टम्स होते हैं, वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ पर आपको समझने वाली बात है कि मियोसिस जब होगा तो उस रिडक्शन डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो जाते हैं। तो किस तरीके से होते हैं वो मैं यहाँ बता देता हूँ। मैं एक एग्जांपल ले रहा था, वो मैंने ये चीज मैंने समझाने के लिए बोला था आपको, लेकिन अभी यहाँ हम एग्जांपल ले रहे हैं। मान लो कोई मेल है और एक फीमेल है, तो मेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स होंगे वो कितना होगा, 46, इसके अंदर भी कितना होगा, 46। तो जब भी ये गैमेट्स बनाएंगे तो 23 पेयर्स बनेंगे इसके, 23 पेयर्स, यहाँ भी 23 पेयर्स। तो जब भी ये रिडक्शन डिवीजन करेंगे क्या करेंगे,
रिडक्शन डिवीजन, तो रिडक्शन डिवीजन में जो है हाफ क्रोमोसोम नंबर भी पार्टिसिपेट करेगा ओनली, तो 23 + 23 और इस तरीके से आपका बनेगा जाइगोट। तो ये जाइगोट जब तैयार हो जाएगा तो इसी को हम बोलते हैं डिप्लॉइड सेल्स। ये डिप्लॉइड सेल्स होती है, तो इसमें क्रोमोसोम्स नंबर जो है वो हाफ यानी कि हैप्लॉइड नेचर्स के फॉर्म होते हैं और ये होता है 2n। तो यहाँ पर जो है वो nn पार्टिसिपेट कर रहे हैं ओनली, सिंगल n। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द रिडक्शन डिवीजन। तो ये टोटल इंफॉर्मेशन जो है ना फ्रेंड्स, ये क्रोमोसोमल थ्योरी से रिलेटेड है। तो ये आपको कैसा लगा, समझ में आया है तो प्लीज कमेंट कीजिए, और कोई क्वेश्चंस भी अगर आपको पढ़ना है तो आप प्लीज कमेंट में बता सकते हैं। फिर से एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।